کیسر و کسرا کی مغیروں کو ہلایا جس نے، حسن یوسف دیکھ کر وہاں کبھی تھی انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر، اور جسے صدیق کی صداقت کا اعتراف نہیں، اور لاکھ سجدے کرے یہ گناہ معاف نہیں، دلوں میں بغض ابو بکر اور بدن پر حج کا لباس، یہ تیرے نصیب کے چکر ہیں طواف نہیں، اور زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں، یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں، اور جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا، وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا، اور پھول ماریں گے نہ کلی ماریں گے، امام ماریں گے نہ ولی ماریں گے، ہو جس کے دل میں بغض اصحاب رسول کا، عمر کے درے سے اسے علی ماریں گے۔ اور ایک کہنے لگا کہ میں زمین پر معاویہ کی حکومت نہیں مانتا، تو میں نے ایک شعر لکھا کہ کون معاویہ کے خطوط لکھ کر آقا کی ترجمانی کر چکا، اس سے منہ موڑ کر تو نادانی کر چکا، اور نیکیوں کو اپنی طوفانی کر چکا، مانتا نہیں زمین پر تو اس کی حکومت، کئی بار سمندروں پہ جو حکمرانی کر چکا، اور یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے، اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ درود پاک۔ واجب الاحترام، 2 مرتبہ آپ کے یہاں نہ آ سکا، اور وہ فلائٹ کا مسئلہ ہوا، جہاز کا مسئلہ ہوا، آج بھی بہت سارے ساتھی تشریف میں تو شاید حیثیت کریں گے اور تیسری مرتبہ بھی نہیں آئیں گے، لیکن الحمدللہ آپ حضرات سے اللہ تعالیٰ نے ملاقات کا شرف بخشا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ حق سے کہنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اس کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پر تھوڑی آپ کی توجہ چاہوں گا، بہت سارے ساتھی مزاج سمجھتے بھی ہوں گے اور بہت سارے نہیں بھی سمجھتے ہوں گے۔ ہم کو گفتگو اس وقت ہوتی ہے کہ جب سامنے والے توجہ سے دیکھیں اور ادھر ادھر نہ دیکھیں، اور جب کوئی بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بھی کہہ دیں، بولنا بھی ہے، خاموش نہیں رہنا، کیونکہ میرا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے کہ جن کے کارکنوں کو خاموش کرا کر انہیں قبروں میں اتارا گیا تو ان کی قبروں کی مٹی کی خوشبو بھی بولتی ہے۔ میرے دوستو، عنوان خاتم المعصومین ہے شاید، یعنی آخری معصوم۔ آپ کو پتہ ہے نبیوں کی کچھ صفات ہوتی ہیں، اس میں ایک صفت ہے معصوم ہونا، کہ نبی گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرتے، اور جب معصوم ہونا انبیاء کی صفت ہے تو سب سے آخری معصوم کون ہوئے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو نبی کے بعد نبی مانے وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے، اور جو نبی کے بعد معصوم مانے وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے۔
जो नबी के बाद एक नबी माने वो भी मुनकिर है, लेकिन जो नबी के बाद 12 नबियों की सिफत वाला माने वो तो उससे बड़ा नबी खत्म नबूवत का मुनकिर है। तो इसलिए याद रखें, मेरे नबी को अल्लाह ने खातमुन नबीयीन बनाया है, और खातमुन नबीयीन का मतलब होता है कि सबसे आखिर में हमारे नबी पैदा हुए, हमारे नबी दुनिया में आए। एक आदमी के 5 बच्चे हों तो खातमुल औलाद वो होता है जो सबसे आखिर में आए। इसके खातमुल औलाद होने के लिए जरूरी नहीं कि पहले वाले बड़े भाइयों या उससे पहले वाले जो पैदा हुए हैं उनका इंतकाल होना जरूरी हो। अगर जो भाई पहले जिंदा हैं और बाद वाले भाई का इंतकाल भी हो जाए तो खातमुल औलाद वही होगा जो सबसे आखिर में बच्चा आया। ये इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है तुम्हें कोई मिले और कहे कि यार अगर नबी खातमुल नबीयीन है, खातमुल मासूमीन है, तो हजरत ईसा ने भी तो आना है। तो आप कहें वो उनसे पहले आए हैं। खत्म नबूवत का मतलब है हमारे नबी के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। हजरत ईसा नए नहीं है, पुराने हैं, और वो पहले के हैं। आएंगे लेकिन नबी के उम्मती बनकर आएंगे, मेरे नबी के ताबेदार बन के आएंगे, इसी शरीयत को फॉलो करके आएंगे। एक कहने लगा मौलवी साहब वो नबी होंगे या नहीं होंगे? मैंने कहा होंगे। तो कहा बात फिर किस तरह बन रही है? मैंने कहा वो इस तरह बन रही है, अगर सिंध का गवर्नर पंजाब में आ जाए, उसे गवर्नर साहब कहा जाएगा, इज्जत मिलेगी, प्रोटोकॉल मिलेगा, लेकिन साइन उसका नहीं चलेगा, ऑर्डर उसका नहीं चलेगा। उसे कहा जाएगा आप वाकई गवर्नर है, लेकिन आपकी हुदूद सिंध की हुदूद है, आपका सिक्का वहां चलता है, आपका खत वहां चलेगा, आपका साइन वहां चलेगा, आपका दस्तखत वहां चलेगा। आप यहाँ आएंगे, प्रोटोकॉल मिलेगा, इज्जत मिलेगी, लेकिन सिक्का आपका नहीं चलेगा। मैंने कहा हजरत ईसा वाकई नबी है, लेकिन वो थे पहले जमाने के नबी। अब चूंकि वो आए हैं हमारे नबी के जमाने की हुदूद में, इज्जत मिलेगी, प्रोटोकॉल मिलेगा, नबी कहा जाएगा, लेकिन सिक्का मोहम्मद का चलेगा, शरीयत मोहम्मद की चलेगी। सिक्का हमारे नबी का चलेगा। और जो ताबेदार होते हैं, यार ये इसको थोड़ा कम कर दो भाई, हम दो दो आवाजों वाले नहीं, हम एक ही आवाज वाले हैं, इसलिए कि हम हक नवाज वाले हैं। मैं तो अभी शुरू में आपको चेक करूंगा कि मैंने किस ट्रैक से गाड़ी चलानी है, 5, 7, 10 मिनट चेक करता हूँ मुझे। ऐसा तो नहीं है कि हमने कहते चाहिए बोलियां या कोई और तो कोई और मसला ना हो जाए। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, ताबेदार कदमों में आता है, इसीलिए तो गुंबद खजरा में एक जगह बाकी है और वहां पर हजरत ईसा आएंगे और आकर सोएंगे। अब उस गुंबद में 2 नबी हो जाएंगे, और कितने खुश नसीब है वो जो 2 नबियों के दरमियान में होंगे, और इन 2 में भी वो कितना खुश नसीब है जो नबी के साथ बिला फसल सो रहा होगा। आज के कहता है बिला फसल, मैंने कहा वो 4 अलिफ खींचता है, तू 8 अलिफ खींचा कर और दुनिया को बता दे आज भी नबी के साथ किसी ने बिला फसल सोते हुए देखना है, वो अबू बकर सिद्दीक को देख ले। नबी के साथ सो रहा है, तू न सोए। 3 दिन अपनी झोली में सुलाया, रब ने कहा सिद्दीक बदला झुका दूंगा, तूने 3 दिन मेरे महबूब को अपनी झोली में सुलाया, मैं कयामत तक तुझे उसके कदमों में सुला दूंगा। बल्कि मैं कहा करता हूँ, मैं तवाफ कर रहा था, मेरी नजर मकाम इब्राहिम पे पड़ी तो मेरे दिल में ख्याल आया, जहाँ अबू बकर सिद्दीक ने भी तवाफ किया है, उनके दिल में भी आया होगा, रब्बा ये पत्थर ही तो है, इस पत्थर को तूने बैतुल्लाह में जगह दी, आखिर इस पत्थर में से क्या खास बात है? जवाब आया होगा अबू बकर ये आम पत्थर नहीं, इसकी पुष्ट को सूंघ, इसकी पुष्ट से मेरे खलील के कदमों की खुशबू आ रही है, इसने मेरे खलील के कदमों का बोझ उठाया है, इसी पे खड़े होकर मेरे इब्राहिम ने मेरे घर की तामीर की है, ये कोई आम पत्थर नहीं है, इसकी पुष्ट को सूंघ, इसकी पुष्ट से मेरे खलील के कदमों की खुशबू आ रही है, इसीलिए मैंने इसे बैतुल्लाह में जगह दे दी। मेरा विजदान कहने लगा, फिर सिद्दीक भी नाज और नखरों में आकर अपनी जुल्फें झटकते हुए ऊपर देखते हुए बोला होगा, रब्बा अगर
वहां से तेरे खलील के कदमों की खुशबू आ रही है तो यहां से तो फिर तेरे हबीब के कदमों की खुशबू आ रही है। वो जो लेके गया ले ही गया, ले ही गया, देख गया, खिलाफत ले गया। मैंने कहा अन्नी गया इत्थे देख, वो पूरे नबी को ही ले गया है। तू अभी तक वहीं फंसा हुआ है, तेरी गोट अभी तक वहीं फंसी है, तेरी घड़ी की सुई वहीं रुकी है। और वैसे भी घड़ी से याद आया, दीन कुरान और सुन्नत से साबित होता है। लेकिन एक कहने लगा, मैं जंग गया, मैंने जवाब दिया, क्लिप चला, देखो ये घड़ी देखो, इस घड़ी के अंदर ना 5-5-5 के फासले पे 12 हैं, 12 साबित हो गए, फिर 5-5-5 के फासले पे 5 भी साबित हो गए, फिर तबर्रा तो 3 है उसका, कहने का तो 3 सीना है ना, बीच में 3 है, खुलफाए सलासा पे तबर्रा कर रहा है। कहते ये 3 टिकती नहीं है एक जगह, ये देखो ये टिकती नहीं, लेकिन 5 भी साबित हो गए, 12 भी साबित हो गए। मैंने कहा पुत्र ये 3 ना होना, ना 5 खबर देते हैं, ना 12 खबर देते हैं। ये 3 है तो तभी तो 12 का पता चलता है, 5 का पता चलता है। और ये बात हकीकत है, इन 3 में जो पहला है वो था, जब तो इमाम जाफर सादिक ने कहा वलदनी अबू बकरिन मर्रतैन, अबू बकर ने मुझे 2 बार जना है, वो मेरा दादा भी लगता है, मेरा नाना भी लगता है। तू 3 को हटाकर न 5 तक पहुंच सकता है, न 12 तक पहुंच सकता है। ले गए नबी को, ले गए, 3 दिन सुलाया, आज तक सो रहा है, नबी के साथ सो रहा है। और मैं कहा करता हूं, पता है सो भी कैसे रहा है? कब्र में मुर्दे को लिटाने का सुन्नत तरीका, हम तो सीधा लिटा के खाली मुंह मोड़ते हैं किबले की तरफ, जबकि करवट लिटाना है, चेहरा भी किबले की तरफ, सीना भी किबले की तरफ, पेट भी किबले की तरफ। अब जनाब अबू बकर सिद्दीक यूं सो रहे हैं, रायमंड में कब्र में सोने वाला, तेरा चेहरा कब्र में बैतुल्लाह की तरफ होता है। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो अपने कब्र में लेटा है, उसका चेहरा बैतुल्लाह की तरफ भी है और रसूलुल्लाह की तरफ भी है। उसका चेहरा बैतुल्लाह की तरफ भी और रसूलुल्लाह की तरफ भी। हाँ, मैं अर्ज ये कर रहा था कि जो नबी के बाद नबी माने वो भी खत्म नबूवत का मुनकिर, और जो नबी के बाद मासूम माने वो भी खत्म नबूवत का मुनकिर। मैंने खुतबे में आयत पढ़ी, उसमें अल्लाह ने कुरान में नबी को सूरज से मिसाल दी कि महबूब आप चमकते हुए सूरज हैं। क्यों मिसाल दी? कि आप देखें सूरज के निकलने से पहले आसमान पर कितने सितारे होते हैं, फिर भी लाइट की जरूरत है, फिर भी सेवर की जरूरत है, फिर भी आपको लाइट जलानी पड़ी, क्योंकि सितारों की रोशनी तो है लेकिन उनकी रोशनी महदूद है। एक सितारा एक इलाके को मुनव्वर करता है, लेकिन सुबह को जब सूरज तुलू होता है तो फिर हर तरफ रोशनी ही रोशनी, फिर किसी सितारे की जरूरत नहीं होती। यूं ही कोई दुनिया आसमाने नबूवत पर कोई सितारा आदम बन कर आया, कोई नूह बन के आया, कोई सितारा ईसा बन के आया, कोई मूसा बन के आया। इनकी रोशनी थी लेकिन महदूद थी। तो इन तमाम सितारों के चमकने के बाद फिर अल्लाह ने आसमाने नबूवत के आफताब व महताब को तुलू करने का फैसला किया। जब वो आफताब व महताब तुलू होके आया, जैसे सूरज सारी दुनिया के लिए होता है, यूं ही मेरे नबी को अल्लाह ने सारी कायनात का नबी बनाया है। वो जर्रे जर्रे का नबी, कतरे कतरे का नबी, हवा खला फजा का नबी, शर्क व गर्ब का नबी,
मशरिक व मगरिब का नबी, शुमाल व जुनूब का नबी, आसमानों का नबी, जमीनों का नबी, जंगलों का नबी, बयाबानों का नबी, रेगिस्तानों का नबी, सहराओं का नबी, नबियों का नबी, रसूलों का नबी, पैगंबरों का नबी, फरिश्तों का नबी, जिन्नात का नबी। जैसे सूरज सारी कायनात को मुनव्वर करता है, आमिना के सूरज ने भी सारी कायनात को मुनव्वर किया है। और जैसे सूरज के बाद फिर किसी सितारे की जरूरत नहीं होती, आमिना के सूरज के बाद भी किसी नबी की जरूरत नहीं पड़ेगी। महबूब और सूरज है, और सूरज जब तुलू होता है तो उसके साथ किरणें नहीं होती ना। सुबह सुबह देखना तो हर एक सूरज को आंखें फाड़ के देख लेता है, आंखें दिखा भी सकता है, आंखें फाड़ के भी देख सकता है। लेकिन 11-12 बजे जब सूरज के साथ किरणें होती हैं, अब जरा आंखें तो दिखा, किरणें आंखें न निकालें तो फिर कहना नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं पहुंचे। देखो ना, अभी किरणें नहीं है, फरहान की चोटी से तुलू हुए। कौन को काम है, कौन दुश्मन लश्कर पीछे लेकर आ रहा है, मानोगे? तो हमने कहा बिल्कुल, आपने कभी झूठ बोला ही नहीं। तो अब जो कह रहा हूं वो भी झूठ नहीं है। कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, एक अल्लाह को इलाह मुझको से हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला, औलाद देने वाला, दुख का दूर करने वाला, बच्चे बच्चियां देने वाला, अल्लाहुल गयूब, हर जगह मौजूद, कारसाज और दस्तगीर। मान लो कामयाब हो जाओगे, तैयार ही नहीं हुए। आंखें दिखा रहे, तो गुस्सा दिखा रहा है, किसी ने पत्थर मार दिया, किसी ने क्या कर दिया, किसी ने तब्बल लक़ब दे दिया, किसी ने नाउज़ुबिल्लाह गाली दे दी, किसी ने तबरा कर दिया। ईमान ही नहीं लाया कोई। मुझे कहने लगा यार मौलवी साहब, अजीब बात नहीं है, इतने बड़े मजमे में मक्के वालों को जमा किया नबी ने और दावत की, और कोई भी ईमान नहीं लाया उधर। मैं कहा असल में अल्लाह ने लाने नहीं किया, तरतीब खराब हो जाती। तो क्या मतलब? मैंने कहा इस मजमे में वो था नहीं जिसने सबसे पहले ईमान लाना। इस मजमे में वो था नहीं जिसका नाम था अबू बकर, और बा काफरा ये अवल के माने में होता है, पहल के माने में होता है। सुबह को जो पहली किरण निकले उसे बुकरा कहते हैं, जो लड़की पहली बार दुल्हन बने उसे बाकिरा कहते हैं। अबे भाई, जो दरख्त से पहला फल आए उसे बकूर कहते हैं, और जो मोहम्मद पर पहला कलमा पड़े उसे अबू बकर कहते हैं। मैंने कहा इस मजमे में वो था नहीं जिसने सबसे पहले पढ़ना था, और जिसने सबसे पहले पढ़ना था उसे जब बताया तो उसने कहा मैं तो उस वक्त नबी मानता हूं जबकि आपने भी अभी दावा नहीं किया। सूरज निकला, किरणें नहीं, हर एक ने आंखें दिखा दी। 11-12 बजे सूरज अपनी किरणों के साथ शुरू होता है। अब जरा सूरज को आंखें तो दिखा, उसकी किरणें तेरी आंखें ना फाड़ दे तो फिर कहना, तेरी आंखें ना निकाल दे तो फिर कहना। यूं ही अभी किरणें नहीं है ना, या बहुत कम है ना, तो देखो जब तो मक्का में कोई गले में रस्सी डाल के घसीट रहा है, कोई आका को जनाब पत्थर मार रहा है। लेकिन जब 11-12 बजे के टाइम जब ये सूरज बदर ओहद और तबूक और हुनैन में अपनी किरणों के साथ आया है, अब कोई जरा इस सूरज को आंखें तो दिखाए, उसकी किरणें उसे आंखें न निकाल दे तो फिर कहना। अब जरा इस सूरज की तरफ कोई गुस्सा करके तो देखे, इसकी किरणें इसकी आंखों को बाहर न निकाल दे तो फिर कहना। तेरा ये सूरज अपनी किरणों से रोशनी देता है, आमना के सूरज ने अपने सहाबा से रोशनी दी है। गर्मी होती है, पत्थर वाले दुआएं करते हैं, खैरपुर वाले, ये मुल्तान वाले भी बहुत सारे, अल्लाह बारिश ना हो, बादल ना आए। तो भाई तेरा दिमाग ठीक है, गर्मी है, बादल आए, बारिश हो, कहते नहीं। कितना सूरज की रोशनी फलों पे पड़ती है, फल पकते हैं। मैंने कहा अच्छा, तेरा ये सूरज इन फलों को पकाता है, उस सूरज की रोशनी ने बिलाल को पकाया है, अब्बाब को पकाया है, खुबैब को पकाया है, अम्मार को पकाया है। फिर वो इतने पक्के हुए कि फिर ऐसे डटे कि अपने जानों के नजराने पेश कर दिए, लेकिन पीछे नहीं हटे।
तेरा ये सूरज इस खेती को पकाता है, उस सूरज ने सहाबा की खेती को पकाया है। जिसे कुरान ने कहा कज़र आई अखरजा, नबी ये आपकी खेती है। नबी की खेती कौन? बोलो बोलो, नबी की खेती कौन? सहाबा, ये नबी की खेती। अब नबी की खेती सहाबा, अब खेती के चौकीदार भी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बोलो। हमें बहुत सारे लोग कहते हैं मौलवी साहब आप लोगों ने कुफर की बातें की, बताओ तो सही कभी किसी को मुसलमान भी किया है? मगर चौकीदार से कोई नहीं पूछता कि तूने इसमें फल फूल उगाए या नहीं, कोई और भी इजाफा किया कि नहीं। ये काम दोस्तों बुजुर्गों का है। चौकीदार से ये पूछ कोई सुंडी तो नहीं आई, कोई कीड़ा तो नहीं आया, कोई काला पूंड तो नहीं आया। हमारी जबान में पूंड कहते हैं, काला पूंड। कोई खेती को नुकसान तो नहीं दिया। हमसे ये पूछ, हम कहेंगे कैसे पहुंचाएगा? चौकीदार हक नवाज कैसे पहुंचाएगा? फिर चोर जो होता है खेती का, तो चोर कहे ये वाला चौकीदार बड़ा अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो क्या मतलब है? चौकीदार को डंडी मार रहा है, उसे मौका फराम करता है। लेकिन चोर कहे ये वाला चौकीदार को ना मुझे अच्छा नहीं लगता, ये वाला इसको गुर्बत को रुस्ता में बुलाऊंगा नहीं, ये वाला मुझे अच्छा नहीं लगता, देखे मुझे पसंद नहीं। चोर चौकीदार को कहे ये वाला चौकीदार ठीक नहीं, तो चौकीदार के लिए तो फख्र की बात है बाबू। नहीं समझ आई क्या कह रहा हूं? और बात साफ ये है, सुनो मौलवियों, जिसे सिद्दीक अच्छा नहीं लगता तू उसे क्यों अच्छा लगता है? साफ बात है। क्या तेरे अंदर कौन सी ऐसी खुसूसियात आई हैं जो अबू बकर में नहीं है, जो उमर उस्मान में नहीं है, जो नबी के यारों में नहीं है? कैसे वो अच्छे नहीं लगते, तू अच्छा लगता है? अपने गिरबान में झांक, कहीं तेरे अंदर तो कमी नहीं है। मेरे लिए तो फख्र की बात है। और मेरा हैदरी शहीद ये कहकर गया है, जिसे सिद्दीक अच्छा नहीं लगता मैं अच्छा ना लगूं। जिसे सिद्दीक अच्छा नहीं लगता मैं अच्छा न लगूं, और मैं अगर उसे अच्छा न लगूं, खुदा की कसम मेरे लिए एजाज की बात है, मेरे लिए कयामत में निजात की बात है। तुझे क्यों कहता है कि ये मुझे अच्छा लगता है? लगता है चोर को कभी कभी अंदर नकब भी लगाने देता है, कभी कभी डंडी मारने देता है, लेकिन नहीं, हम मोहम्मद की खेती के पहरेदार हैं और इंशाअल्लाह पहरेदारी करके दिखाएंगे। मैंने आजकल एक दो जगह कहा, मुझे लोग कहने लगे अच्छा यार क्या काम कर रहे हैं आप लोग? मैंने कहा सिद्दीक की बेटी की चौकीदारी। कहते इस पे मिलता क्या है? मैं कहा पता है क्या मिलता है? कि क्या? मैंने कहा नबी के घर को घेरा काफिरों ने हिजरत वाली रात। मैं अक्सर कहा करता हूँ, नबी के घर को घेरा काफिरों ने घेरा, नबी अंदर है। नबी ने फरमाया तू मेरे बिस्तर पे सो जा। आका क्यों? कहा इसलिए कि बाहर जितने भी काफिर है वो तुझे नबी समझते रहेंगे, हालांकि तू तो नबी थोड़ी, अली है, वली है, गुल की कली है, चमन की कली है। लेकिन मैं मट्टी फेंकूंगा, इनकी आंखों में जाएगी, इनकी आंखों की लाइट बंद होगी, लाइट बंद करना ये मजहब बनाएंगे, फिर इनको बिस्तर पे सोया हुआ अली नबी लगेगा। इसलिए तू मेरे बिस्तर पे सो जा, ताकि बाहर जितने काफिर हैं वो तुझे नबी समझते रहेंगे। मुजारे है मुस्तकबिल के लिए भी आता है, और वो समझेंगे तुझ पर वही आती है, जिब्रील तेरी तरफ आता है, हालांकि नबी तो मैं हूं, तू तो अली है। और वहां से चले हैं, गए हैं सिद्दीक के दरवाजे पर रजी अल्लाह ताला अन्हु। नबी ने अबू बकर को लिया और साथ लेकर चले गए, हिजरत कर दी, है ना? कितनी आसानी से सोचते हैं, कितना आसान है, चले गए बस चले गए। तू रायवन का ताजिर हो, तेरा यहाँ कारोबार हो बड़ा,
बेटियां हों और एक बूढ़ा बाप हो, और रात के किसी पहर तेरा दोस्त आए और कहे सीपीडी ने छापा मारा है, मैं दूसरी खिड़की से छलांग लगा के आया हूँ, यार तू तो मेरा जिगरी है, चल निकलते अफगानिस्तान भाग जाते हैं। तो कहेगा यार तेरा दिमाग ठीक है, अल्लाह के बंदे, कारोबार है, तुझे पता है, इधर मेरा सेटअप भी चल रहा है, और दूसरा तुझे पता है यार मेरी छोटी बच्ची है 6 साल की, और दूसरी भी मेरी बेटी है, मेरे घर में बूढ़ा बाप है, तेरे घर की ये पोजीशन हो, फिर मैं देखता हूँ ना तेरे जिगरी दोस्ती की कहाँ गई, तेरी जिगर की यारी कहाँ गई। हाय सिद्दीक, मैं तेरी जूती पे कुर्बान जाऊं, जिसके घर में 2 नौ बेटियां हैं, जिसका मक्का में कारोबार है, एक बूढ़ा बाप है। जब नबी ने फरमाया चलना है तो 5,000 दिरहम टोटल सिद्दीक के पास थे, सारे लिए, एक भी घर पे नहीं छोड़ा कि नबी पर लुटाऊंगा। इसी को तो कहते हैं परवाने को चराग, बुलबुल को फूल, बस सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। आज लोग कहते हैं हम आपकी जमात में आए, लेकिन हमें डर है, हमें पता चला है, खफा भी लगता है, घर का चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल होता है। असल में हमारे घर की औरतें जरा पर्दे वाली है ना, और तेरे मेरे घर की 4 दीवारी का तकद्दुस सिद्दीक की चादर 4 दीवारी के तकद्दुस से ज्यादा कब से हो गया? जबकि सिद्दीक को पता था नबी वहां नहीं मिलेंगे तो अगला छापा मेरे ही घर पे पड़ेगा, पता था। आज तू कहते है पर्दे वाली, आयशा से ज्यादा पर्दे वाली है तेरी बेटी, अस्मा से ज्यादा पर्दे वाली है तेरी बीवी। सिद्दीक किसी की परवाह नहीं करता, वादा कर रहा है मन में, सिद्दीक तेरी मोहब्बत में मैं भी किसी की परवाह नहीं करूंगा। क्यों पीछे होते हो? आ गए, आपा लग गया सिद्दीक के दरवाजे पर। अबू जहल, उतबा, शेबा, रबीया, अबू सुफियान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। मारी लात अबू जहल ने, अंदर दाखिल हो गया, चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। अस्मा से पूछा कहाँ है तुम्हारा बाप, कहाँ है नबी तुम्हारा? अब अगर कहती है पता नहीं तो परवरिश सिद्दीक की गोद में हुई, बताती है तो फिर तशद्दुद कहना है। आवाज बुलंद करके कहती है पता है, लेकिन दोनों का पता काफिर को कभी नहीं बताऊंगी, मोमिन को बताऊंगी। इनका पता हमेशा चलता ही मोमिन को है, पता ही मोमिन को है, काफिर को नहीं बताऊंगी। तो थप्पड़ मारा सिद्दीक की बेटी को। जब दूसरा थप्पड़ मारने लगा, अबू सुफियान ने हाथ पकड़ लिया, शर्म कर, हया कर, कोई मक्के की रिवायत पासदारी का ख्याल कर। औरत जात पे हाथ उठाता है, मुझे कहते हैं मुझे आप किस काम में लगे हो? मैं कहा सिद्दीक की बेटी की चौकीदारी में। कहते इससे मिलता क्या है? मैंने कहा छापा मारने वालों में अल्लाह ने हिदायत उसी को दी जिसने सिद्दीक की बेटी का दिफा किया। सहाबी अल्लाह ने उसी को बनाया जिसने सिद्दीक की बेटी का दिफा किया। मक्का फतह हुआ तो किसी के घर को दारुल अमन कहा, वो सिद्दीक है, नबी को लेके गए हैं और फिर चले गए हैं और गए हैं, और आज तक बिला फसल साथ सो रहे हैं, आज तक बिला फसल बोलो साथ सो रहे हैं। हर जगह नबी के साथ बिला फसल अगर तुम्हें नजर आएगा तो अबू बकर सिद्दीक। दमादम मस्त कलंदर सिद्दीक दा, बोलो ये नंबर याद रहेगा? रहेगा। आज इस सिद्दीक की चौकीदारी, मैंने उस दिन उलमा कन्वेंशन में कहा, कराची में बहुत बड़ा उलमा कन्वेंशन था। मैंने कहा मुझे बताओ कि हम नमाज रोजा हज ज़कात क्यों करते हैं? कहते जी अल्लाह राजी हो। मैं कहा मेरा एक सवाल है, अल्लाह ने सहाबा को रजी अल्लाह अन्हु का टिकट दिया दुनिया ही में, किस अमल पे दिया? जब वो नमाज में थे, जब वो रुकू में थे, जब वो ज़कात दे रहे थे, जब वो रोजा रखे हुए थे, या जब वो तवाफ कर रहे थे? किस अमल पर रजी अल्लाह अन्हु की आयत आई? जवाब आएगा नबी
जब हजरत उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह अन्हु के बदला लेने के लिए, उन पर जान देने के लिए सहाबा से बैत ले रहे थे, इस अमल पर अल्लाह ने कुरान भेजा, लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। महबूबा, ये जितने भी उस्मान के लिए जान देने का इरादा कर रहे हैं, अल्लाह सबसे राजी हो गया है। बताओ, उस्मान के लिए जान देने पर अल्लाह राजी होता है, जो सारे सहाबा के लिए जान देने का इरादा करे, क्या अल्लाह उससे राजी नहीं होगा? अल्लाह राजी है, जभी तो कब्रों से खुशबू आती है, जभी तो कब्रें महकती हैं। अभी अब्दुल्ला शहीद चन्नी गोट वाले डेरा गाजी खान अभी हालिया बादशों में 14-15 साल बाद उनकी कब्र बैठी है ना, खुशबू ही खुशबू, जिस्म भी सलामत, कफन भी सलामत। तो मुझे कहना पड़ा, जमीन मेली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता, सहाबा के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। आज हमें लोग कहते हैं हिकमत कुछ मसला है, अब सहाबा के बारे में हिकमत का मसला है ही नहीं। क्या समझ रहे हो? इधर नबी के साथ गरीब साहबा बैठे हैं, कुरैश के सरदार, नबी उन्हें दावत देने लगे। वो कहते हैं पहले इन गरीबों को यहाँ से उठाएं, जो कल तक हमारे गुलाम थे और आज हमारी मजलिस में बैठेंगे। ये खब्बाब को उठाएं, खुबैब को उठाएं, अम्मार को उठाएं, बिलाल को उठाएं। अब देखो ये एम हिकमत है, ये तो अपने ही है। अगर ये थोड़ी देर बाहर चले जाएं और इन सरदारों को बात समझ आए, एक सरदार मुसलमान होता था, पीछे पूरा पूरा कबीला मुसलमान हो जाता था, ये एन हिकमत है। करीब था कि नबी ने उठाते, लेकिन जो सहाबा को बाईपास करके मुसलमान होना चाहे, अल्लाह को ऐसे बेईमानों के ईमान की भी जरूरत नहीं। गाँव वहदत वहदत वालों, तुम्हें सहाबा की लाज रखना नहीं आती, उनकी इज्जत की लाज रखना नहीं आती। तेरे दस्तार की इज्जत उस वक्त होगी जब तू उस दस्तार की इज्जत करेगा जो दस्तार के टुकड़े टुकड़े होकर एक एक सुराख को बंद करके गारे सौर में मोहम्मद का पहरा दे रही। करीब था तो उठाते, रब ने कुरान भेज दिया, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वलअशी। ना 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 महबूबा, इनको नहीं उठाना, ये यहाँ से नहीं उठेंगे, ये यहीं बैठे रहेंगे। सवाल हुआ, रब्बा अगर ये न गए तो इन काफिरों के ईमान की फिक्र न करूं, इनकी जन्नत की फिक्र न करूं, ये फिर काफिर के काफिर बन के चले जाएंगे। जवाब सुन रब का दो टोक। रब ने कहा, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। जिसकी मर्जी ये मोमिन हो, जिसकी मर्जी ये काफिर हो, बिलाल नहीं उठेगा। मेरी कराची वाली जबान में तर्जुमा सुनना चाहते हो तो रब कहता है कोई भाड़ में जाता है जाए, सहाबा यहीं बैठेंगे, ये तेरी महफिल में रहेंगे, क्योंकि मुझे तेरे साथ यही अच्छे लगते हैं। जैसे चांद के गिर्द सितारों ने खूबसूरती पैदा की है, मोहम्मद के गिर्द उनके यारों ने खूबसूरती पैदा की है। कौन से यार? मैं कल किसी जगह था, उस इलाके का एमपीए साहब भी था। मैंने कहा आप लोग तरक्की की बातें करते हैं, तरक्कियां तो वो करके गए हैं। आज कहते हैं देखो किसी तरक्की साइंस ने, यहाँ डायरेक्ट बराह रास्त मैच देखा जाता है दूसरे मुल्क से। यार देखो फोन पे बात करो ना, तार ना इंतजार, यहीं की आवाज वहां पर जाती है। मैंने कहा 9-10 मुहर्रम को जरा मोबाइल में बात करके दिखाना, फिर पता चलेगा तार और इंतजार। मैंने कहा अब तेरी तरक्की कहाँ गई? मैंने कहा जिनको तू तरक्की कहता है, मोहम्मद के सहाबा पांव की तलियों के नीचे रोन के गए हैं। मस्जिद नबवी का मिंबर है, अल्लाह ने उमर के सामने से सारे पर्दे हटाए, वो वहीं से शाम में लड़ने वाला सारिया बराह रास्त देखता भी है, और या सारियतुल जबल कहकर अल्लाह बगैर तारो इंतजार के उमर की आवाज मदीने से शाम तक पहुंचा के भी बताता है। बल्कि एक बात मैं कई जगह कहता हूँ, तरक्की आज मुझे किसी ने कहा चाइना ने इतनी तरक्की की है, समंदर पे पुल बनाया है, 100 किलोमीटर लंबा पुल, गाड़ी चलती
دی اس پر. میں کہا پل نہ ہو تو پھر پل نہ ہو تو یار مجھے صاحب کے زمانہ مت کلندر گاڑی پانی کے اندر. میں نے کہا یہ کون سی ترقی ہے؟ تو کہا بغیر پل کے بھی کوئی سواری چلتی ہے؟ میں نے کہا میں ایک ترقی یافتہ قوم کو جانتا ہوں. 10 تو 10 دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. چلتے جا رہے ہیں آگے پانی. امیر صاحب سے پوچھا امیر صاحب مخ کے وہ دے وقت کو ماں کئی خبر نشتا جا پرواہ مکوا. جو رب یہاں چلا سکتا ہے وہ وہاں بھی چلائے گا. اور پھر بغیر پل کے دریاؤں پہ سواری کوئی بھگا کے بتائے. ان ترقی یافتہ لوگوں کو محمد کے صحابہ کہا جاتا ہے. اس موقع پہ میں بات اکثر جگہوں پہ کہتا ہوں, آپ نے بھی سنی ہوگی. میں نے صاحب تصورات کی دنیا میں جا کر میں نے دریا سے پوچھا تجھ میں بڑی گہرائی ہے, گہرائی بھی گہرائی بھی گہرائی بھی, جو آتا ہے ڈبو دیتا ہے. کہنے لگا انصری صاحب تیراکی نہیں آتی تو آنا نہیں, تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا. مجھ میں بڑی گہرائی ہے, میں چھوڑتا نہیں ہوں, ڈبو دیتا ہوں. میں کہا جو آتا ہے ڈبو دیتا ہے؟ کہتا ہے ہاں. میں نے کہا انہیں کیوں نہیں ڈبویا تھا؟ وہ دریا بکھر کے کہتا ہے میری گہرائی کو دیکھ رہے ہو, رقابی کا نجوم, ان کی بلندی نظر نہیں آ رہی؟ انہیں آسمان کے ستارے کہا نبی نے, اتنی بلندی کو تھوڑی ڈبوتا ہوں بھائی. میں نے کہا پھر ان کے گھوڑوں کے پاؤں کے کھر کیوں ڈبوئے تھے آدھا 1 انچ؟ کہنے لگا مولوی صاحب میں نے ڈبونے کے لیے نہیں, آدھا 1 انچ ان کے گھوڑوں کے پاؤں پہ میری تری اس لیے لگی کہ اللہ نے صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں قرآن میں کھائی, ان کے گھوڑوں کے پاؤں چوم رہا تھا. اور یہ ڈوبے کیسے؟ کشتیاں اپنی ساحل پہ لگائے ہوئے ہیں, یا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. وہ گھوڑے بھگائیں, اللہ ان کے گھوڑوں کی قسمیں قرآن میں کھاتا ہے. صحابہ گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے بھگائیں, اللہ کے ولا دیا کی صبح الموریا کی صبح المغیرہ کی صبح. پتہ چلتا ہے اللہ کو وہی گھوڑے اچھے لگتے جن پر بیٹھا جائے. صحابہ بیٹھتے تھے نا. بھائی ادب کی تعریف علماء سے پوچھ لو, وَنُشَيْءٍ فِي مَحَلِّ فَهُوَ ادب. شے کو اپنے محل پہ رکھنا ادب ہے. اللہ نے کہا وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ, میں نے گدھے خچر اور گھوڑے بنائے کس لیے؟ کہا لِتَرْكَبُوهَا, تاکہ اس پہ بیٹھو, تاکہ اس پہ بیٹھو. اب وہ بیٹھے گا, یہ گھوڑا اللہ کو پسند ہے. لیکن میں ایک دن سوچ رہا تھا کوئی بیٹھتا ہے کوئی نہیں بیٹھتا, اپنی اپنی بات ہے نا. میں مشرکین مکہ کی بات کر رہا ہوں, کوئی بیٹھتا ہے کوئی نہیں بیٹھتا, معذرت کے ساتھ نہیں بیٹھا. بھائی بیٹھ کیوں نہیں سکتا؟ کہا چھوٹے قد والے نے گرا دیا تھا. کیا مطلب؟ میں سوچ رہا تھا بدر میں سفید کھڑی ہے, عبد الرحمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دائیں بائیں طرف ماج اور معدد چھوٹے قد والے, اوروں کے ساتھ بڑے بڑے. میں ابھی بدر سے ہو کر آیا, میں نے دیکھا وہ جگہ. عبد الرحمان کہتے ہیں یہ چھوٹے قد والا ہے, کہنے لگا کہتا ابو جہل کون ہے؟ بیٹا چھوڑیں گے جی, ہاں بیٹا آپ تو چھوٹے قد والے. کہا چاہتا کبھی کبھی چھوٹے قد والے وہ کام کر جاتے ہیں کہ بڑے بڑے قد والے دیکھتے رہ جاتے ہیں. نہیں سمجھ آئی. کبھی کبھی چھوٹے قد والے یار 1985 میں اینڈ میں جماعت بنا رہے ہیں, ستمبر آخری یہ سال کا, اور پھر 90 کے فروری شروع میں شہید ہو رہے ہیں. تمہیں پتہ ہے ہماری جماعت کسی کرامات پر کھڑی ہے؟ نواز کو یہ 3-4 سال میں 85 کے شروع میں اور 90 کے شروع میں اور 85 کے آخر میں, یہ کتنا ٹائم بنتا ہے؟ اور اس میں ان کی 2.5-3 سال کی گرفتاری ہے. پھر سفر میں جو وقت گزرے,
پھر روپوشیوں میں جو وقت گزرے اسے ملا ہی کیا وقت؟ 1 سے 1.5 سال، 1 سے 1.5 سال میں دنیا کفر کو دن میں تارے دکھائے، اور اسی کو کہتے ہیں جو کسی فاتح کے لیے کسی نے کہا تھا، وہ آیا، اس نے دیکھا اور فتح کر دیا۔ اچھا دیکھا ابھی تو نظر نہیں آ رہا ہے تو بتاؤں گا، تو میں بڑا ہی بدترین اور غلیظ ترین کافر۔ اچھا اتنے میں دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کے اندر اپنے لوگوں کے درمیان میں نظر آیا تو کہا یہ جو گھوڑے والا ہے یہی ابو جہل ہے، تو یہی گھوڑے والا ابو جہل ہے، کہاں یہی ہے۔ ایسے نکلے اور جو نکلے اور جو ایک بھائی نے جو لگائی تو وہ گرا گھوڑے سے، اور شاید معاذ نے مڑتے ہوئے کہا ہوگا چچا آئندہ گھوڑا نظر آئے گا اوپر بیٹھنے والا نظر نہیں آئے گا۔ بیٹھنے والا نظر آیا ابو جہل، پھر بولنا، پھر آیا۔ اب وہ جو گرا نا تو تڑپا، زخمی تھا۔ اب تڑپ میں آدمی ادھر ادھر لوٹ پوٹ ہوتا ہے تو کبھی گھوڑے کے نیچے سے جا رہا ہے، کبھی اوپر سے، کہا اوپر آ، اوپر آ۔ کبھی گھوڑے کی تیسری ٹانگ چوتھی، کبھی پانچویں ٹانگ، پانچویں نہیں وہ دم ہوتی ہے، اس سے ٹکرا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، بھائی اوپر آ۔ کہتا نہیں، ضرب چھوٹے قد والے کی لگتی، آئندہ میری سواری نظر آئے گی، سن لے یہ بات یاد رکھ، کبھی کبھی چھوٹے قد والے وہ کام کر جاتے ہیں، بڑے بڑے قد والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تمہیں کیا پتا جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، تم تو پگڑی والوں کو بھی سمجھتے ہو تو ایسی بیکار ہے، لیکن وائٹ پگڑی نے وائٹ ہاؤس کو دکھایا یا نہیں دکھایا؟ اصل میں ہم نے پہلے شروع میں جب یہ آیا تھا نا امریکہ 48 ملکوں کے ساتھ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دے گا، ادھر ملا عمر نے کہا سر بچیا خیال ہوگا، اور جب پھنسا تو کہنے لگا راستہ دو، کہتا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا مت پیڑ ملنگا نو نہیں تو پہ جانا ہے ڈنگا نو، انہیں رختوں اور بچوں کے پیچھے نہیں دیکھا تھا، ہمت ہے تو کراس کر ورنہ برداشت کر، آیا کیوں تھا؟ مجھے پتہ ہونا چاہیے تھا مقابلے میں جو جماعت ہے اس کا سربراہ کا نام عمر ہے۔ یار اس عمر کی فوج ایسی باروب ہے تو اس عمر کی فوج کتنی باروب ہوگی؟ اس عمر کی فوج کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس عمر کی فوج کا کیسے کسی نے مقابلہ کیا ہوگا؟ جبھی تو کیسر و کسرا کو دن میں تارے دکھائے اور آج بھی دکھا رہے ہیں، عملی لوگ ہیں۔ گھبراؤ گے تو نہیں، پریشان تو نہیں ہوگے، کام کو بڑھاؤ گے، دفاع صحاب رسول کے لیے میدان عمل میں آؤ گے، اور یہ کہتے ہوئے آؤ کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔